Good morning, students. So today we will see how the colloids can be prepared. Preparation of colloids. In the previous video, you have seen the colloid classification of colloid, and now our topic is how to prepare the colloids. तो बच्चों, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो colloids के प्रिपरेशन को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. उसमें एक है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ colloid, एंड सेकेंड इज केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ colloid. तो सबसे पहले हम फिजिकल मेथड देखेंगे. फिजिकल मेथड में जिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्पर्सन मेथड. डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सन मेथड जैसा नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड में जो लंप ऑफ द सब्सटेंस है, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे इन सुटेबल मीडियम. So in this method, the lump of the substance is broken down in the range of colloid by suitable methods. So this method involves the physical phenomenon to convert the lump of the substance in the range of colloid. बच्चों, colloid का रेंज क्या होता है आप पढ़ चुके हैं पहले. इसमें जो साइज पार्टिकल्स का होता है वो 1 nm to 1000 nm होता है, ये आप याद रखेंगे. So now we will take the first method, that is in colloid mill. तो colloid mill में यहां पर होता क्या है कि जो हमारा कोर्स सस्पेंशन है उसको colloid mill में हम पास करते हैं. एंड colloid mill consists of 2 metallic discs. तो कुछ इस तरह से है, अगर आप इसको देखें. So this is these are the metallic discs and these two like this, and the coarse suspension is allowed to come in between the disc, and these discs are rotating in opposite directions like this. So in this way, if they are rotating in opposite direction and coarse or suspension with suitable medium is passed through in between the discs. तो जब ये डिस्क रैपिडली रोटेट करेंगी तो उस समय जब कोर्स जो होगा, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, दे विल बी ब्रोकन डाउन इन द रेंज ऑफ colloid. क्योंकि यहाँ पर मीडियम रहता है, इसलिए मीडियम के प्रेजेंस की वजह से वो और छोटे नहीं टूट पाते हैं. तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हम यहाँ पर इंसर्ट क्या करेंगे, इमल्सन करेंगे, कोर्स सस्पेंशन करेंगे, और जहां पर पार्टिकल्स की साइज बिगर होगी, और यहां से जो हमारा आउटकम मिलेगा वो हमें colloid मिल जाएगा. सो दिस इज यू कैन से इन दिस मेथड वी यूज मैकेनिकल फोर्स टू ब्रेक डाउन the coarse suspension in the range of colloid. So this is in colloid mill. Now second method is, this is important methods, Bradix arc method. Bradix arc method. By this method, metal salts can be prepared. The salts of gold, platinum, silver, etc. can be prepared by this method. Now what is this method? How the colloid is prepared? यहाँ पर करते क्या है कि जिस मेटल का हमें colloid बनाना है उसके हम 2 रॉड्स ले लेते हैं like this, और फिर इन रॉड को हाई पोटेंशियल सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं. इसके बाद इन रॉड्स को कोल्ड मीडियम, जो कि एक ट्रफ में है, दिस ट्रफ कंटेन्स कोल्ड वाटर और कोल्ड सॉल्वेंट, यहाँ पर कोल्ड मीडियम है, और दिस ट्रफ इज पुट इन another container which contains ice.
आइस इसलिए ताकि इट कीप्स द मीडियम कोल्ड, टेम्परेचर को कम रखेगा। नाउ व्हाट हैपेंस, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक इन बिटवीन दीज टू रॉड्स। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू स्पार्क इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। सो ड्यू टू दिस इंटेंस हीट ड्यूरिंग स्पार्क the metal vaporizes, and when metal vapors come in contact with the cold medium, then they get condensed. On condensation, small particles aggregate together to come in the range of collide. So this is Briggs arc method. This is also called as electrical disintegration method, because in this method the bigger size particles are broken by the use of electrical spark. So here is also dispersion, but the dispersion is brought about by electric spark. So this method is called as electrical disintegration method. This method is also called as Briggs arc method. Now the next and very important method is peptidation. Now this is very important from short note point of view in examination. Third method, this is called पेप्टाइजेशन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नाम से देखें पेप्टाइजेशन, इस पूरे मेथड को ही पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिए। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता क्या है? एक्चुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि टेम्पोररी या वीक फोर्स ऑफ एक्शन से जुड़े होते हैं, जो कि थक्का बना देते हैं। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेने के बाद दिस इज पुट इन सुटेबल मीडियम। इसको फिर किस में रखना है? सुटेबल मीडियम में रखना है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्या लेना है? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन है ये खास होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए विच कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉमन आयन, इसमें एक कॉमन आयन का होना जरूरी है। सो नाउ अगेन हम मेथड समझ लें। हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, देन इट इज पुट इन सुटेबल मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। So what is suitable electrolyte? That must contain one ion common to the ion of precipitate. तो जब हम ऐसा करके और इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को उसमें शेक करते हैं, जब हम स्टिर करेंगे, जब हम शेक करेंगे, तो होता क्या है? जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है दिस चेंज इन द कोलाइड, ये कोलाइड बन जाएगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अब इस मेथड के दौरान होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो एक बार फिर से ये मेथड आप जान लीजिए। पेप्टाइजेशन मीन्स दिस इज द मेथड इन विच द मीडियम इटसेल्फ ब्रेक्स द lump of the precipitate which is freshly prepared in the colloid by shaking the precipitate in suitable medium in presence of some suitable electrolyte that must contain one common ion. For example, ferric hydroxide salt can be prepared by this method. So what happens when this ferric hydroxide is shaken in water? तो यहां पर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी रख लिया जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये पीपीटी है। इसको हमने सुटेबल मीडियम, यहाँ पर वाटर है, वाटर में रख करके हमने शेक किया। तो कई बार शेक करने पर अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है तो अपने आप वो कोलाइड रेंज में टूटने लगता है। लेकिन आपने यहां पढ़ा कि एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें ऐड करते हैं। अब इस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यहां पर काम क्या है? एक्चुअली इस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को जिसमें कम से कम एक कॉमन आयन हो उसको पेप्टाइजिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग रिएजेंट। तो जैसे हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ले लिए, प्रेसिपिटेट ले लिए। अब इसको हमने वाटर में शेक किया तो ये अपने आप टूटता है, लेकिन जब हम इसी में स्मॉल अमाउंट ऑफ
फेरिक क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मिला देते हैं। तो अब आप ध्यान रहे कि ये प्रेसिपिटेट किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, और हमने इसमें क्या मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक आयन क्या हुआ, कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा यहाँ पर पेप्टाइजिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है वहां पर, ये जो प्रेसिपिटेट है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो गुड एडजॉर्बेंट होते हैं, तो दे सेलेक्टिवली एडजॉर्ब द कॉमन आयन ऑन देयर सरफेस। तो कौन सा आयन कॉमन है, फेरिक आयन। अब बच्चों क्या होगा कि जो फेरिक आयन है वो प्रेसिपिटेट के सरफेस पर लोड हो जाएंगे, और चूंकि ये सेम आयन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके रिपल्सन की वजह से जो प्रेसिपिटेट है अब वो आसानी से टूटने लगता है, और जब ये प्रेसिपिटेट टूटेगा तो अब इसका जो कंपोजिशन होगा इसके ऊपर फेरिक आयन एडजॉर्ब भी रहेगा। इसीलिए इस मेथड से जो सॉल्व बनेगा उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व इस मेथड से प्रिपेयर्ड होगा। तो बच्चों एक बार हम समअप करते हैं इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि ये फिजिकल मेथड है। दिस इन्वॉल्व डिस्पर्सन, जहां पर बिगर पार्टिकल को या कोर्स को हम कोलाइड रेंज में तोड़ते हैं, चाहे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन रहा कोलाइड रेंज में, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन रहा ब्रेडिक्स-आर्क मेथड में, या सॉल्वेंट इटसेल्फ ब्रेक्स the lump of the substance in the range of colloid by peptidization method in presence of suitable electrolyte, which is called peptidizing reagent, which is loaded on the surface of precipitate and breaks the precipitate in the range of colloid. Now we will deal with the chemical methods of preparation of colloid. ये तीनों physical methods रहे, अब हम लेंगे chemical methods. Chemical methods for the preparation of colloid. यहां पर जो डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड्स हैं, लेकिन यहां पर जो मेथड हम डील करेंगे वो हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन मेथड होगा। इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन मेथड। अब कंडेंसेशन क्या है, डिस्पर्सन का उल्टा। तो यहां पर क्या होंगे इन मेथड्स में कि जो पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 mm से छोटी है, दे आर इंड्यूस्ड टू मेक द क्लस्टर, they are induced to get aggregate and come in the range of colloid. So this method is called condensation method. In these methods, a smaller particle whose size is lesser than 1 nanometer, they are induced to cluster together, they are induced to combine together to make the cluster of colloid range. अब कौन कौन से केमिकल मेथड्स हैं जिनके दौरान हमें कोलाइड मिलते हैं, सॉल्व बनते हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा था। द रिएक्शन ऑफ साल्ट विद द कंपोनेंट ऑफ वाटर टू मेक एसिड एंड बेसिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड salt can be prepared by this method. How it is done? The ferric chloride solution is taken and it is heated with water up to boiling point temperature. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड का एक सोल्यूशन लेना है और उसको वाटर के साथ क्या करना है, बॉयल कर देना है। तो जब आप 5 to 10 मिनट्स तक बॉयल करेंगे तो जो फेरिक क्लोराइड का ओरिजिनल कलर है वो आपको येलोइश दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये सॉल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, कोलाइड में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे ये वाइन का कलर लेने लगता है, बहुत ही अच्छा रेडिश ब्राउन कलर आने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हाइड्रोलिसिस होने पर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में वहां पर HCl भी रहेगा। तो यहाँ पर 3 मोल्स ले लीजिए बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा, सॉल के फॉर्म में होगा। इसके पार्टिकल सॉल के रेंज में होंगे, कोलाइड के रेंज में होंगे। लेकिन यहाँ पर इस मेथड में क्या होगा कि उसी मीडियम में जहां पर ये हमारा कोलाइड बना है HCl भी है, और हम जानते हैं कि HCl इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, तो इसलिए HCl का रिमूवल जरूरी होगा, जो कि आप अगले मेथड्स में पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन में।
So this is called hydrolysis. Now second method is oxidation method. Oxidation method. What is oxidation? Combination with oxygen is called oxidation method. Sulfur salt can be prepared by this method. Sulfur salt can be prepared by this method. Method बड़ा सिंपल है. आप अगर शॉर्ट में थोड़े अमाउंट में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो जस्ट यू टेक 10 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब और उसके बाद क्या करना है कि उसमें H2S पास कराइए जब तक कि वो 10 ml क्या हो जाए, सेचुरेट ना हो जाए. मतलब इतना पास कराइए जब तक कि उस सॉल्यूशन से H2S की स्मेल ना आने लगे. इतना हो जाए, अब उसमें आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दीजिए, लाइक ब्रोमीन वाटर मिला दीजिए, HNO3 मिला दीजिए, देन यू विल गेट द सॉल्ट ऑफ सल्फर. लेट अस सी हाउ. When H2S gas is passed through water, then it is converted in H2S aqueous solution. And when we add some oxidizing agent, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है? यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले लीजिए या डाइल्यूट HNO3 ले लीजिए, जो भी अवेलेबल हो उसको आप ड्रॉप वाइज मिला दीजिए, 1-2 ml. जब आप मिलाएंगे देन व्हाट हैपेंस, दिस इज कन्वर्टेड इन द सल्फर. ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि यहाँ पर सल्फर 2 माइनस है, ये प्लस होता है और यहाँ पर साथ में वाटर बनेगा तो कोई हार्म नहीं रहेगा. हम जानते हैं कि सल्फर के इंडिविजुअल पार्टिकल छोटे होंगे, लेकिन जब कंडेंस होंगे वो एग्रीगेट होंगे तो किस रेंज में आ जाएंगे? कोलाइड के रेंज में आएंगे. तो यहाँ पर इस मेथड से हमें सल्फर का कोलाइड मिल जाएगा. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन मेथड. नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा अपोजिट, रिडक्शन मेथड. थर्ड, रिडक्शन मेथड. बच्चों रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करिए या जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए. तो गोल्ड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. गोल्ड सॉल्ट ये दवाओं में यूज होता है गोल्ड सॉल्ट. तो गोल्ड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. करते क्या है? इसमें हम गोल्ड क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे एंड देन वी ऐड सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. अब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट टिन सेकेंड क्लोराइड हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन. ये टिन सेकेंड क्लोराइड या स्टेनस, ये हमारा स्टेनस क्लोराइड है जो कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. आपने टी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th में पढ़ा था कि टिन के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अनस्टेबल होता है और ये +4 में जाना चाहेगा. और लेड के केस में +4 अनस्टेबल होता है, वो +2 में जाना चाहता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लास 11th, इसको एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो पर्पज है वो है गोल्ड सॉल्ट बनाना. तो सबसे पहले हम क्या ले लीजिए? गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हमने सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया. हम इसके जगह फॉर्मल्डिहाइड भी मिला सकते हैं जो कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होंगे. और साथ में जो हमारा गोल्ड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है और यहाँ गोल्ड एटम बन गए जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया. तो +3 से 0 बाद क्या हुआ? रिड्यूस हो गया. अब ये मेथड रिडक्शन का हो गया. अब चूंकि हम जानते हैं एटम छोटे होंगे जो गोल्ड के एटम बनेंगे और फिर ये गोल्ड एटम क्या होंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंसेशन से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर गोल्ड सॉल्ट मिल जाएगा. अब इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 ले लीजिए, यहाँ पर इसको 3 ले लीजिए, अकॉर्डिंगली इसको 3 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा और हमें गोल्ड सॉल्ट मिल जाएगा. सो दिस मेथड इज रिडक्शन. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन मेथड. लेट अस सी द मेथड इज वेरी सिंपल. डबल डिकम्पोजिशन. फोर्थ मेथड डबल डिकम्पोजिशन मेथड. डबल जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, 2 चीजें हैं जो आपस में टूट रही हैं और फिर आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर रही हैं.
तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, ये AS2S3, इसका नाम है आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। यहां भी मेथड बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, हमें आर्सेनियस ऑक्साइड लेना है AS2O3 और इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जब आप डिजोल्व हो जाए तो इसी में H2S जो किप्स ऑपरेटर्स में बनता है फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से, तो वहां से जो H2S आ रही है इसमें आप बबल कर दीजिए। तो जब आप इसमें H2S बबल करेंगे गैस के फॉर्म में, देन यू विल गेट द कोलाइड ऑफ दिस आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 ये बन जाएगा, और साथ में AS2 वाटर बढ़ेगा, तो वाटर से कोई हार्म है नहीं वहां पर, ये हमारा कोलाइड के रेंज में रहेगा। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट बनेगा। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 हो, यहाँ 3H2S है, तो आप 3H2S कर दीजिए यहाँ पर और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा जो आर्सेनियस सल्फाइड पार्टिकल बनेंगे फ्लूइड, ये छोटे होंगे क्योंकि मेथड हमारा कंडेंसेशन का है, तो ये पार्टिकल इंड्यूस्ड होकर के एग्रीगेट होकर के कोलाइड रेंज में आ जाएंगे। तो इस तरह से इन मेथड से हम कोलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।